of cell division, mitosis and meiosis. Mitosis is the cell division in which one cell give rise to two daughter cell, and meiosis is the cell division where one cell give rise to two cell and it will divide by meiosis 2. 2 again forms two cells. So one cell give rise to four cells. Here the chromosome number remains the same. If it is 2n in the parent, then the daughter will also have 2n. And if the parent has n, then the daughter will also have the n. Daughter means daughter, nahi daughter cells. Okay, the new individuals are known as daughter cells. Here, if the parent cell has 2n, then the daughter cell, in the daughter cell, the chromosome number is reduced to half and it will become 1/2, so it will become n. Okay, and this maintains the chromosome number. Okay, and because of meiosis, the chromosome numbers don't go on expanding and expanding, and the chromosome number remains the same. Okay, it is reduced to half and therefore it don't go beyond 2n, right? Okay, and after fertilization, the condition of 2n is again maintained because gametes are formed because of meiosis. You have to remember that mitosis helps in growth, okay, and meiosis, it helps in formation of gamete formation. And what are gametes? Sperm and ovum. So when they combine together, what is formed? Zygote is formed in the which is a fertilized ovum, and in that n plus n gives 2n. So the condition of 2n is maintained, right? Okay. So now in today's topic, we are going to learn about the different stages which are present in mitosis. Okay. So do you know what are the stages which are present in mitosis? Because we have at least learned the different names of the stages which are present in mitosis. Okay. Anybody from class who can answer this question? What are the different stages which are present in mitosis? G1 phase, G2 phase. No, I am asking about mitosis. That G1 and G2 phase, they are the phases which are present in Interphase, interphase. Which are prophase, yes, prophase. interphase, prophase, See, inlate see, prophase, metaphase. listen here. Interphase is the stage which is the resting phase in which the G1, G2 and synthesis phase come. Okay. Mitosis phase has the first phase as prophase. क्या आएगा? Prophase. ठीक है? Now you can start from prophase. Yes, prophase, then Metaphase, anaphase, metaphase, anaphase, and telophase, and telophase. cytokinesis. Yes. Okay. Cytokinase. So here the prophase, metaphase, then anaphase and telophase. These four will divide the nucleus. So they are a part of karyokinesis, right? And the last one is after when the nucleus divides. After that, the nuclear division is followed by which type of division? The division of cytoplasm. So that is cytokinesis. Okay? So today we are going to learn about the different steps that take place in mitosis. उसके पहले कुछ चीजें आएंगी जो मैं आपको बता रही हूँ, वो क्योंकि अब हम पीपीटी से देखने वाले हैं तो यहाँ पे मुझे कुछ चीजें आपको बतानी थी. ओके, हम ये इस तरह का एक डायग्राम देखेंगे. यस, सपोज this is a cell. Okay, so here in this cell, this is a nucleus. Okay, so we'll find first the nucleus, and this nucleus is surrounded by what? Nuclear membrane. ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. नाउ इनसाइड न्यूक्लियस व्हाट इज प्रेजेंट? क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स. और मैंने आपको बताया कि सेल डिवीजन के पहले जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर विजिबल एज डैश. बिफोर सेल डिवीजन द जेनेटिक मटेरियल इज विजिबल एज डैश. क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं? जब सेल डिवीजन स्टार्ट होने पे आता है, इसके पहले स्टार्ट होने के पहले क्रोमोसोम्स कैसे दिखाई देते हैं? Chromatin material, and as it reaches the time of cell division, it changes itself. It becomes short and thick, and they appear as chromosome. तो अगर वो entangled मास है कि पूरे वायर को मैंने ऐसे entangled कर दिया, तो ये क्या हुआ आपका? ये सारा क्या हुआ? क्रोमोसोम. ठीक है, लेकिन इसी को मैंने अगर स्ट्रेट बना दिया तो वो क्या? सॉरी, सारा इंटैंगल्ड मास क्रोमैटिन मटेरियल हुआ और सारे को मैंने स्ट्रेट बना दिया तो वो क्या हुआ? क्रोमोसोम. ठीक है, तो जैसे ही हमारा सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, आपको क्या दिखाई देने लग जाएगा? क्रोमोसोम दिखाई देने लग जाएगा.
एक तो ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरा है आपको इसके पहले वाले लेसन जो सेल वाला चैप्टर था, देयर आई हैव सेड यू दैट देयर इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम बताया था ना, तो सेंट्रोसोम में छोटे छोटे दो स्ट्रक्चर्स बताए थे विच आर ओरिएंटेड इन अ परपेंडिकुलर मैनर। एक परपेंडिकुलर मैनर में दो स्ट्रक्चर्स बताए थे छोटे छोटे। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टू स्ट्रक्चर्स? उन दोनों स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है? ये अभी मैं अटेंडेंस नहीं लगा रही, कुछ बच्चे अटेंडेंस के लिए बोल रहे हैं अभी नहीं लगाऊंगे। ये आज की क्लास थोड़ी सी छोटी लूंगी मैं, बस मुझे माइटोसिस के स्टेजेस बतानी है और मैं खत्म कर दूंगी, अटेंडेंस लास्ट में लूंगी। ठीक है, yes, what is the name of the two structures which are held perpendicular in centrosome? ये मैंने पिछले क्लास में बताया था ना, ये दे आर सेंट्रियोल्स। ठीक है ना, तो वो जो सेंट्रियोल्स को मैंने बताया था कि जो सेंट्रियोल्स हैं दे स्टार्ट फॉर्मिंग सर्टेन फाइबर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फाइबर्स? उन फाइबर्स का नाम क्या आएगा? यस, एनीवन? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर, यस, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, सो नाउ दैट सेंट्रियोल जो यहाँ पे होते हैं, एक आपका सेंट्रोसोम ये है जिसमें आपके दो सेंट्रियोल्स ये हैं। ठीक है, नाउ एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन each of the centrosomes disappear हो जाएगा और and each of the centriole move towards the opposite pole. One will be here and another will be here. ठीक है, दो सेंट्रियोल दो अलग अलग पोजीशन पे आ जाएंगे। ओके, एंड दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सर्टेन एस्ट्रल फाइबर्स। इनको हम एस्ट्रल फाइबर्स कहते हैं, ASTRAL, एस्ट्रल फाइबर्स कहते हैं। तो दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सर्टेन एस्ट्रल फाइबर्स एंड दे आर नोन एज स्पिंडल फाइबर्स। क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, जैसे जैसे स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होने लग जाएगी? डिसॉल्व होने लग जाएगी। ठीक है, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ना, ये जो यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल है, जो ये यहाँ पे जो क्रोमैटिन मटेरियल है, नाउ इट विल चेंज इनटू क्रोमोसोम। ये किस में चेंज हो जाएंगे? क्रोमोसोम में। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स जाके अटैच हो जाएंगे कहाँ पे? इन द क्रोमोसोम। ठीक है, सो दिस ऑल विल स्टडी इन द डिफरेंट स्टेप्स। तो अभी आपको ये बस इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा सेल है। इसके अंदर एक राउंड स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इस तरह के जो ये स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे दे आर सेंट्रियोल, और ये जो फाइबर्स हैं दे आर द स्पिंडल फाइबर्स, एंड बीच में जो आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा वो क्या है? क्रोमोसोम। ठीक है, इतना पता होना चाहिए तो आप सारे के सारे स्टेप्स को सीख जाओगे। ठीक है, नाउ when I take the window of this PPT, then the chatting is not visible, so better you can ask any question by saying. ठीक है, okay, students, now this is the first phase. My voice is audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now so today we will learn about mitosis. Prophase is the first stage of mitosis, then followed by metaphase, anaphase and telophase. ठीक है, so all these are part of what? Karyokinesis. The nucleus divides, and when the nucleus divides, then it is followed by cytokinesis. The cytoplasm also divides. Okay, and whole of this is what? It is mitosis. ठीक है, इसके पहले ये सारा जो है, in this the cell prepares itself for the means it gets ready for the cell division. जो भी एक necessary preparation है, for example you are approaching your exams, so you will do your preparation, you will take a new stationery, you will read everything. Okay, so you will put petrol in your vehicle, so all the necessary changes you will take in your house or you will do to yourself so that you get ready for the exam. Similarly, here the mitosis is the exam for the cell, and these are all the G1, S and G2 phase. These help the mitosis for the exam to occur, for mitosis to occur.
Now, this is the first phase. Now, in some of the books, you can find prophase is divided into two steps: early prophase and late prophase. ठीक है? Even in your NCERT, ठीक है, आपके NCERT में भी जो prophase है वो दो उसमें दिया हुआ. You can open your NCERT textbooks also. पेज नंबर 165 में 165 पे हूँ. ओके, वहां पे अर्ली प्रोफेस और लेट प्रोफेस दिया हुआ है. ठीक है, ओके. अब इसमें आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो ये पूरा एक सेल का डायग्राम है. ठीक है, किसका डायग्राम है? ये पूरा सेल का डायग्राम है. यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जो ठीक न्यूक्लियस है, ये दिस ग्रीन वॉल. एक मिनट, लेट मी टेक अ पॉइंटर. Okay, so ये क्या है? This is nuclear membrane, right? This is nuclear membrane and this is the cell. ये पूरा आपका सेल है. Okay, now these are the two spindle fibers. Spindle fibers में आप देख रहे हो यहाँ पे कि दो मतलब जो एक सेंट्रोसोम होता है वो यहाँ पर होता है. एक सेंट्रोसोम के अंदर दो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं. बट हमने सिंथेसिस फेज के आगे जो दूसरा G2 फेज देखा था, उसमें क्या देखा था कि सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे सेंट्रियोल्स भी डबल हो गए. एक सेट ये रहा और एक सेट ये रहा. नहीं तो ये केवल एक ही सेट होता है एक सेल के अंदर. ठीक है, बट द सेल हैज अप्रोच फॉर सेल डिवीजन, देयरफॉर टू सेंट्रियोल्स आर फॉर्म. दो सेट बन गए सेंट्रियोल्स का, एक ये रहा और एक ये रहा. ठीक है, उन दोनों में देखो ये जो अरेंजमेंट है सेंट्रियोल्स की वो कैसे है? परपेंडिकुलर है. ठीक है, ओके. नाउ इन अर्ली प्रोफेज व्हाट विल हैपन? वन सेंट्रियोल विल रिमेन हियर, मींस वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल विल रिमेन हियर, the other pair will migrate from here and it will come to this pole. दो पोल्स होंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और बीच में आपका ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस हो जाएगा. ठीक है, एक सेंट्रियोल यहाँ रहेगा, एक वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल will be here and another pair will be here. Now you can see here since the cell has approached for cell division, so now chromatin material is not visible. What is visible? Chromosome is visible. Okay, and as the nuclear division proceeds, they will become more and more clear. Entangled mass आपको धीरे धीरे कम दिखना शुरू हो जाएगा, क्रोमोसोम्स अच्छे से नजर आ जाएंगे. ठीक है, so the chromosomes start to condense. Condense मतलब क्रोमैटिन मटेरियल है वो धीरे 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 सीधा होने लग जाएगा, और वो किस चीज का शेप लेगा? क्रोमैटिन चेंजेस टू क्रोमोसोम. इसी को कहते हैं कंडेंसेशन. यहाँ पे ठीक है, कंडेंस हो रहा है क्रोमोसोम. ओके, सो हियर सपोज ये एक एग्जांपल, सपोज two pair of chromosomes are there. Two are maroon in color and two are violet in color. ठीक है, okay. Now mitotic spindle starts to form. Spindle formation start हो जाता है. आपके जो दोनों centrioles they move towards the opposite pole. Okay. Yes. Yes, student. The third slide is visible. Late prophase. ओके, सो हियर इन द लेट प्रोफेज का जो सेकंड फेज है उसमें क्या है? अब ये जो स्पिंडल फॉर्मेशन, बुक में आपकी स्पिंडल फॉर्मेशन दिखाई नहीं हुई है. ओके, अर्ली प्रोफेज में और लेट प्रोफेज में नहीं बताई हुई है. ओके, बस वहाँ पे न्यूक्लियस को ज्यादा कंसंट्रेट किया गया है. सो वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल विल बी हियर एंड अनदर पेयर ऑफ सेंट्रियोल विल बी हियर. ओके, एंड दिस द न्यूक्लियर द मेम्ब्रेन, एक मिनट, लेट मी go towards the यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको मैं बोल रही हूँ, दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट विल स्टार्ट डिसॉल्विंग हियर. यहाँ पे धीरे धीरे न्यूक्लियर. हाँ मैम, मैंने अभी वो सबमिट कर दिया, PDF जो था बनाना था. अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं देख लूंगी. बता तो मैं जारी से सबमिट करने के लिए मैं देख लूंगी, प्रेजेंट लगा दूंगी मैं उसमें. ठीक है, ओके. यहाँ पे नाम, योर नेम? रितिका, ठीक है, मैं लगा दूंगी. ओके, तो हियर यहाँ पे ये इस वाले में अर्ली प्रोफेज में व्हाट हैपेंस, दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट डिसॉल्विंग, मतलब धीरे 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 ये लाइट कलर होने लग जाएगी. कौन सी? न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है. ठीक है, एंड इन लेट दिस प्रोफेज नाउ दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नो वे. यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई है. तो अर्ली प्रोफेज में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाएगी डिसॉल्विंग, and in late prophase the nuclear membrane will completely dissolve. अब आपको देख रहा होगा, बुक में भी देखो, बुक में भी देखते जाओ, बुक के डायग्राम में पेज नंबर 165 में फिगर 10.2 A and B. ए में देखो आप, जो अर्ली प्रोफेज है उसका सेकंड वाला देखो, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थोड़ी थोड़ी सी बची हुई है,
and by the end it will dissolve, ठीक है, वो खत्म हो जाएगी. Now the nuclear envelope breaks down. यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं ये बताया हुआ है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूट गई है और धीरे 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 इसके एंड तक ये क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, यहाँ से गायब हो जाएगी. ओके, नाउ दिस न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन, क्रोमोसोम फुली गेट कंडेंस्ड, मतलब धीरे धीरे क्रोमैटिन पूरा क्रोमोसोम में चेंज हो चुका है. इजिली द क्रोमोसोम्स आर विजिबल. यहाँ पे क्या होता है क्रोमोसोम का, आपको मैंने बताया था कि अगर हम एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाएं, सपोज दिस इज क्रोमोसोम, देन सेंट्रोमियर. यस, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, सेंट्रोमियर. एंड व्हाट आर दीज टू, इन दोनों को क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड. यस, क्रोमैटिड आपको पता है. एक और चीज यहाँ पे आपको लर्न करने, दिस इज सिस्टर क्रोमैटिड, ये याद आपको रखना है. एक साइड वाले दोनों क्रोमैटिड्स को हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है. और अगर मैं इन दोनों को बोलूं, दे आर नोन एज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है. ये सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स समझ में आया आपको. सेंट्रोमियर के एक तरफ वाले क्या होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड, और दोनों ऑपोजिट पोल्स वाले जो क्रोमैटिड्स हमको क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. ये याद रखना है क्योंकि आपको मियोसिस में ये इसकी हेल्प पड़ेगी, ठीक है. तो नाउ वी कैन सी दैट द क्रोमोसोम, द क्रोमैटिन मटेरियल हैज कंप्लीटली चेंज इनटू क्रोमोसोम, एंड वन मोर event will take place here the chromosome will start moving in the center. क्रोमोसोम कहाँ पे है, मतलब पूरे बिखरे हुए थे. जैसे आपका अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पूरा अंदर बिखरे हुए थे, लेकिन अब क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द सेंटर. यहाँ वाले इस पोल वाले क्रोमोसोम बीच में आएंगे, इधर वाले क्रोमोसोम यहाँ बीच में जाएंगे, ठीक है. सो दे विल अलाइन टुवर्ड द सेंटर. सेंटर पे पूरे क्या आ जाएंगे, सेंटर पे आ जाएगा सारा का सारा chromosome. So the chromosome will move toward the center. Okay. Now moving to the next slide. Yes, here. So this is the next phase of metaphase. Now you can see metaphase में nuclear membrane आपको यहाँ पे दिख रही है कहीं पे. What about nuclear membrane? Yes, is it visible? Broke down. No. Okay. So nuclear membrane has completely dissolved. Metaphase में you cannot see any nuclear membrane. ठीक है. प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज के न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट हुई थी, डिसॉल्विंग हुई होना, ब्रेक हुई थी और एंड तक वो कंप्लीटली ब्रेक होके गायब हो गई. बट व्हेन इट अप्रोचेस मेटाफेज, एज मेटाफेज स्टार्ट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली गॉन. यू कैन नॉट सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द स्पिंडल फाइबर्स जो हैं देखो ये पूरे बन गए, दे हैव कंप्लीटली फॉर्म, दे हैव कंप्लीटली फॉर्म, एंड ईच ऑफ द स्पिंडल फाइबर, ये रहा आपका क्रोमैटिड. ओके, हमने इसके पहले पिछले लेसन में एक काइनेटोकोर पढ़ा था ना. काइनेटोकोर आर सर्टेन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. सो हियर सर्टेन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर व्हिच आर नोन एज काइनेटोकोर इज प्रेजेंट. सो द स्पिंडल फाइबर विल अटैच टू द काइनेटोकोर. सो देयर यू हैव आस्क्ड दैट क्वेश्चन आल्सो, मैम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काइनेटोकोर. तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि जो काइनेटोकोर है इससे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है. इट प्रोवाइड्स अ प्लेस वेयर द spindle fibers can attach. So similarly here, यहाँ आपको लग रहा है सेंट्रोमियर से अटैच है, but it is attached to the kinetochore. So the spindle formation is complete from both the sides, and you can see all the chromosomes, they will assign themselves in the middle. सारे chromosomes कहाँ पे आ गए हैं, सारे chromosomes आ गए हैं middle में. Okay, middle of the nucleus. Okay, इसमें कोई doubt? Should we move? Yes. Then now the next one is एनाफेज. एनाफेज में आप देख सकते हो, एनाफेज में अब क्या होगी, स्पिंडल फाइबर बीच में से ब्रेक होने लग जाएगी, यहाँ से स्पिंडल फाइबर ब्रेक होने लग जाएगी, एंड जो ये एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर्स हैं दे विल बिकम शॉर्टन एंड शॉर्टन. वो क्या होने लग जाएंगे, वो वापस पोल्स की तरफ मूव करने लग जाएंगे. मीन्स दिस वाल इधर पे ये मूव करेंगे नीचे वाले, एंड हेयर the spindle fibers will move to the poles. पहले वाले में ऊपर से नीचे आए थे, ठीक है. अब क्या हो जाएगा, वापस they will move towards the pole. Okay, and as they move above, they will, because the spindle fibers were attached to the kinetochore, so now the chromatid, ये आपका जो क्रोमोसोम था, एक मिनट यहाँ पे मैं बना लूं, ये आपका जो क्रोमोसोम था ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा. ओके, क्योंकि स्पिंडल फाइबर यहाँ पे काइनेटोकोर में अटैच था. जैसे जैसे स्पिंडल फाइबर वापस बैक होने लग जाएगा, दिस क्रोमैटिड
there will be a breaking of this chromosome. So two chromatids will move to one pole and another chromatids will move to another pole. ठीक है, ओके। और एक और चीज है, एक मिनट में एक चीज बताऊं। ओके, एक और चीज मुझे आपको बतानी थी कि पहले क्रोमोसोम जो आए थे वो कैसे भी हों, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह के क्रोमोसोम है वो, ठीक है ना, इस तरह के। व्हेन दे अलाइन देमसेल्फ इन द मिडल, दे अलाइन लाइक दिस, ओके, दे अलाइन लाइक दिस। ये बात आपको कितने बच्चों को समझ में आई? सपोज द क्रोमोसोम इज लाइक दिस, व्हेन दे अलाइन इन द मिडल, दे विल बिकम लाइक दिस, ठीक है। So when there is separation, the separation of chromatid will take place from here. So these two chromatids will move upward and these two chromatids will move downward. ठीक है? Okay. So here now you can see four chromatids. They are moving in the upward direction, and the next four they are moving in the downward direction towards the opposite pole. Okay, kinetochore microtubules pull chromosomes towards the pole. जो kinetochore है वो microtubule क्या करेगा, kinetochore को poles की तरफ खींच लेगा and they will move towards the pole. Moving to the next one. Here, this is telophase. Okay, so what happens in telophase? telophase में अब telophase जो होता है वो थोड़ा सा ऑपोजिट होता है प्रोफेज के, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सो प्रोफेज में जो जो चीजें होती है जस्ट उसको ऑपोजिट होता है। प्रोफेज में न्यूक्लियर मटेरियल डिसॉल्व होना शुरू हुई थी, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा आना शुरू हुई थी। प्रोफेज में ये डिसअपियर हो रही थी और अब क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल अगेन रीअपियर, विल स्टार्ट रीअपियरिंग। क्रोमोसोम्स अगेन अब किस में बन जाएंगे, क्रोमैटिन में। उसमें क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन गए थे प्रोफेज में, और टेलोफेज में क्या होगा, टेलोफेज में वापस क्रोमोसोम से क्या बन जाएगा, क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। और ये जो ये है आपके सेंट्रियोल से विल मूव टुवर्ड द पोल, एक पोल पे ये आ गया, एक पोल पे ये आ गया, एंड एक और चीज था यहाँ पे भी ये वापस आ गया, ठीक है। नाउ यू कैन सी एक सेट से हमारे वन सेट से कितने बन गए क्रोमोसोम का सेट, 2 बन गया। वन सेट इज दिस वन, ये एक सेट हो गया, एंड दिस वन इज, ये जो है दिस वन इज द अदर सेट, ओके। सो दिस इज व्हाट, दिस इज टेलोफेज, राइट, ओके। द नेक्स्ट वन, now here cytokinesis, okay, let me move here, yes, now here you can see that the nucleus is divided into 2, okay, nucleus जो है आपका 2 में डिवाइड हो गया है। here is this one is 1 and this one is 1, यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियस ये रहा, दूसरा न्यूक्लियस ये रहा, so nucleus has divided into 2, okay, and this is what, ये क्या है, ये सेल की वॉल है, सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये वाली जो है, और अंदर वाली ये आपकी ये जो बन जाएगी ये पूरी फिर कंप्लीट बन जाएगी, और कंप्लीट बनने के बाद ये क्या हो जाएगी, दिस विल बी द न्यूक्लियर मटेरियल, सो सॉरी दिस विल बी द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देयरफॉर द न्यूक्लियर 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर फॉर्म्ड, इट मींस द न्यूक्लियस हैज डिवाइडेड इनटू 2, वन दिस वन और दूसरा जो है ये वाला, इस तरह के 2 न्यूक्लियस जो है वो बन जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ओके, हियर cytokinesis, now we'll see about cytokinesis. So this is animal cell and this is plant cell. So in yesterday's class I have cleared you that in animal cell what is formed. कौन बताएगा क्या डिफरेंस, कल की क्लास में बताया था, how cytokinesis is different in animal cell and plant cell. फरो बनता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में सेल प्लेट्स, सेल प्लेट बनती है। यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रही है कि after the formation of, yes, after the formation of the nuclear material the cell plate will be formed, okay, in a plant cell, but if it is an animal cell then a furrow मतलब क्या होता है कि ये जो आपका सेल ये अंदर की तरफ चला जाएगा, this constriction deepen inside, और इस तरफ से फिर ये अंदर हो जाएगा, तो एक फरो बन जाएगी। जैसे आप एक बैलून आपने ब्लो किया हुआ और एंड ब्लोड बैलून को आप बीच में से कंस्ट्रक्शन करके उसको राउंड कर दो तो 2 बैलून से बन जाएंगे ना, सेम हेयर, ओके।
So the furrow deepens here, the furrow deepens and it divides into two cells. न्यूक्लियस दो बन चुके हैं. Now this is followed by the division of cell. इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस ऑलरेडी डिवाइड हो चुका था, अब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया. So this is what साइटोकाइनेसिस. उसी तरह से प्लांट सेल में यहाँ पे एक क्या बन गई, सेल प्लेट बन गई. न्यूक्लियस वाज ऑलरेडी डिवाइडेड एंड नाउ द साइटोप्लाज्म हैज आल्सो डिवाइडेड. सो दिस इज द साइटोकाइनेसिस. सेल इसमें प्लांट सेल में फरो फॉर्मेशन इसलिए नहीं होती है, सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है ये प्लांट सेल में, बिकॉज हेयर अ रिजिड सेल वॉल इज देयर, बट एनिमल सेल लैक्स अ सेल वॉल. Okay, therefore animal cell can easily form a furrow, but plant cell have a rigid cell wall, therefore they cannot form a cell wall, and a cell plate in the form of middle lamella is formed between two cells. पहले middle lamella बनेगी, उसके बाद ये जो cell wall है ये पूरी ऐसे करके ऐसे हो जाएगी, और यहाँ वाली जो सेल वॉल है वो पूरी ऐसे करके ऐसे हो जाएगी. मिडल लैमेला इसके अंदर आ जाएगी. ठीक है. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट डायग्राम. हियर, ये तो मैंने आपको कल बता ही दिया था. ओके, so this is the same diagram we have seen. Now this is the stages of mitotic cell division. Mitotic cell division के ये फर्स्ट स्टेज आपका, इसमें क्या है, कुछ जो पुरानी बुक्स हैं वहाँ पे इंटरफेस दिया हुआ है कि माइटोटिक एक्चुअल में क्या माइटोसिस का पार्ट तो है, बट द एक्चुअल डिवीजन टेक्स प्लेस फ्रॉम प्रोफेज. ठीक है, तो अगर आप लिख भी दोगे तो वो गलत नहीं है, बट एक्चुअल डिवीजन कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोफेज से. इंटरफेस में क्या होता है, जो सेल है इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द माइटोटिक सेल डिवीजन. तो इंटरफेज, प्रोफेज, late prophase, metaphase, anaphase, telophase, and then followed by the cytokinesis. ठीक है. ओके, नाउ यहाँ पे क्लियर पिक्चर है सारे डायग्राम्स की. ओके, अब मैं एक एक करके नाम बोलूंगी और आप जो है वो स्टेज को समझाओगे. ठीक है, एक बार टाइम बताओ मुझे कितना हो रहा है. 12:33. चलो 2-2 मिनट सबको दूंगी. मैं नाम जिनका बोलूंगी वही. एडविन हो क्लास में आप? एडविन आर यू प्रेजेंट? अच्छा, एडविन का तो स्पीकर काम नहीं कर रहा. ठीक है, कोई बात नहीं. ज्योति मीना, ज्योति मीना आर यू देयर? हाँ, ज्योति मीना. Yes, ma'am. कुड यू एक्सप्लेन दिस प्रोफेज? प्रोफेज पे एक्सप्लेन करो. द डायग्राम इज इन फ्रंट ऑफ यू. ये बेटा फटाफट, इतना टाइम नहीं है, जल्दी करो. मेरी इसके बाद एक्चुअली क्लास 12 भी है, इसलिए आज मैं क्लास आपकी छोटी ले रही हूँ. ये ज्योति, प्रोफेज में अभी मैंने आपको समझाया व्हाट हैपेंस. जस्ट आपको 2-3 इवेंट बताने जो प्रोफेज में हुए हैं. Ma'am, chromosomal materials condenses. ओके, और क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंसेस. ठीक है, और Spindles, microtubules are present. microtubules start forming. Okay, and they start to the centrioles move towards the opposite pole. Okay, and the chromosomes start to come in the middle. ठीक है, लेट प्रोफेज तक होता है. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. ओके, सलोनी धाकड़ है? Yes, ma'am. अच्छा, सलोनी धाकड़, यस. एक्सप्लेन दिस मेटाफेज स्टेज. ये आपके पास डायग्राम इज इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट आप उसको देख के एक्सप्लेन करना है. यस, एक्सप्लेन इट. मेटाफेज. यस सलोनी, फटाफट बताओ जल्दी बेटा, टाइम नहीं है. और शुड आई गिव द चांस टू द नेक्स्ट वन? हाँ बोलो. Metaphase is a stage in the cell cycle where the genetic material is condensing into chromosomes. That has already condensed. Then what happens in metaphase? They are visible and nucleus disappears and chromosome appear in the cytoplasm of the cell. और कुछ यहाँ पे मेन इवेंट क्या है बेटा? मेन इवेंट आपको ध्यान रखना है, प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स है वो दे विल मूव टुवर्ड द सेंटर, और मेटाफेज में सेंट्रल लाइनिंग बन के यही इंपॉर्टेंट है that all the chromosome they lie in the center. This is the main step that you should not miss while writing. Okay, कंडेंसेशन तो हो चुकी है आपकी प्रोफेज में, सारे क्रोमोसोम्स अलाइन हो चुके हैं मिडल में, और स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है. ये इसकी मेन वो है. ठीक है. यस प्रवेद, आर यू देयर? Yes, ma'am. Okay, okay, you have to explain what happens in anaphase.
एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स रहते हैं वापस पोल की तरफ डायरेक्ट हो जाते हैं, और जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स रहते हैं वो भी उनके साथ साथ डायरेक्ट हो जाते हैं ठीक है। सेल को दो पार्ट में डिवाइड करते हुए। ओके हाँ, इसमें आपको मेन इवेंट तो ये याद रखना है कि जो सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम क्या हो गया है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है। ओके, एंड द क्रोमैटिड दे मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। आपको ये दिख रही है सब डिवीजन हो गया, और ये जैसे जैसे स्पिंडल फाइबर छोटा होता जाएगा दे विल मूव टुवर्ड्स द एनाफेज। ओके देन अयांश, आर यू प्रेजेंट? अयांश नॉर्मली एब्सेंट ही रहता है। दीपांशी गौतम रहता है कि दीपांशी गौतम, आर यू देयर? दिव्यांशु शुक्ला, दीपांशी गौतम है क्या? मैम, अच्छा, टेलोफेज एक्सप्लेन करो अगर हो तो। in telophase spindle fiber disappear, nuclear membrane recome. Yes, nuclear membrane reappears, spindle fibers disappear. Okay, and the nucleus. Chromosomes. हाँ बोलो बोलो। Chromosomes decondense. Yes, chromosome decondense into chromatin material, ठीक है। And यहाँ पे the nucleus has completely divided into 2 nucleus. One nucleus has divided into 2 nucleus. Okay, then कीर्ति मलिक, कीर्ति मलिक है क्या? लक्की भी क्लास आई थिंक नहीं अटेंड करता। यहाँ पे मेरे पास अटेंडेंस रजिस्टर। दीपांशी गौतम हो गए। दिव्यांशु शुक्ला, दिव्यांशु आर यू देयर? यस मैम। हाँ दिव्यांशु, ये एक्सप्लेन करो साइटोकाइनेसिस। मैम, cytokinesis in finally the cell divides into 2 different cells. ओके, Individual. तो साइटोप्लाज्म है। साइटोकाइनेसिस में आपको ये बताना है कि साइटोप्लाज्म पहले न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, और उसके बाद द सेल हैज कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल। ओके, तो Yes, यस, विल मूव टू द स्क्रीन। Ma'am, I have submitted the assignment. कौन? दिव्यांशु शुक्ला? Yes ma'am. अच्छा ठीक है, आपका और रितिका गिरी दोनों का प्रेजेंट लगा दूंगी मैं। ठीक है, so students, give your attendance and you can leave the class. If you have any doubt, you can ask after taking attendance. ठीक है, मैं आज क्लास इतनी ले रही हूँ क्योंकि इसके बाद भी एक और क्लास है, ठीक है। And in the next class we'll read about meiosis. Okay, we'll study about the different stages which are present in meiosis. Meiosis थोड़ा सा typical और है इससे ज़्यादा। माइटोसिस अभी आपने पढ़ लिया तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। meiosis में 2-3 स्टेप्स और है, ठीक है।